कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, जो बुलावें त्यों बोले स्वामी। कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। परम सन्मान सत्कार जो जुगो जुग अटल, चबर छत्र तख्त दे मालक, राजान राज पहानान बहान देवान देव, उपमा महान समरथ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर टलदी शाम दे नाल गुरु बाबा जी दे दरबार सजे हैं। सो ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਆਓ गुरु चरणों के विच गुर शब्द विचार दे नाल जुड़ना करिए। खाकसर नूं कुछ कहण की इजाजत देंदे हुए सारे बैठे गुरु फतेह की साझ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर ते सिख दा जिहड़ा नाता है, गुरु चरण शरण विच आउण दा, उस शब्द का है। गुरु दे नाल स्नेह सिख दा ते सिख दा गुरु दे नाल स्नेह जिहड़ा है वो शब्द राही है। ते जिहड़ी शब्द दी साडे सामने संजोग है शब्द दे नाल, वो कीर्तन राही, पाठ राही, कथा राही, बाणी दे जाप राही ये असीं गुरु नाल साझ पाउंदे हां। इहदे नाल ही साडा गुरु नाल संबंध बनदा है। सिख ते संगत गुरु, सिख ते संगत गुरु ते गुरु दा हुक्म, पाठ कह लो, बाणी कह लो, नाम कह लो, कई रूप कह सकते हैं। सिख ते गुरु ते गुरु की संगत, ते गुरु की संगत लई पाठ चाहिए, बाणी चाहिए है। महाराज कहते हुणे पढ़िया सीगा, कई बार असीं रोज़ पढ़ते हाँ भी ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, रब की अत प्यारी जिहड़ी स्टेज आ गई संगत। संगत नूं गुरु पातशाह ने वड्याया है।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਸੀਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਲਿਖੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 9 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਦੀਦਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਦਾਰ, ਕਥਾ ਦੀਦਾਰ, ਪਾਠ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿਰੋਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਵੀ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਆਣੀ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 5, ਪਾਠ ਨੰਬਰ 4, ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 5, ਉਹ ਪਾਠ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੀਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਪੂਰਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਦੀ, ਕਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਾਠ ਪਲੱਸ ਦੀਦਾਰ। ਦੀਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੀਦਾਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਦਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਦੀਦਾਰ, ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਗਾ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਈ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
डिठे मुक्त न हो भी जिचर शब्द ना करें विचार। जिन्ना चिर तू शब्द की विचार नहीं ना करता तो डिठिया मुक्ति नहीं हो सकती। देखा कि ना देखण नूं जहांगीर ने किहड़ा नहीं देखा, गुरु अर्जन पातशाह ने, चंदू ने किहड़ा नहीं देखा, शेख सरहंदी ने किहड़ा नहीं देखा, देखिया सीगा। देखण वाले तो सारे ही सी, देखिया नहीं, उन्हां दी विचारधारा नहीं अडॉप्ट की। गुरु अर्जन देव ते विचारधारा नाल उन्हां दी सहमति नहीं। तो इस करके विचार ही गुरु का पाठ का विचार है। मैं बेनती करिया सी गुरु नाल सांझ बनती है पाठ राही। गुरबाणी पूरी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ है, सहज पाठ, आखंड पाठ, पाठ है ना। एवं पाठ करना, एवं पाठ की माफ़ी चाहूँगा, निंदिया एवं कहना भी एवं की करिए बार बार नहीं भाई, इसका मतलब की है यही पाठ दीदार बनेगा, दर्शन होंगे। तो हुण ध्यान दिया जी, पाठ तो चल रहा है पर जो पाठ नूं सुने ही नहीं, कीर्तन तो हो रहा है जो कीर्तन नूं सुने ही नहीं, कथा तो हो रही सी तो सुनी ही नहीं। इसका मतलब की है, उहदे च ध्यान ही नहीं है, बस फिर जो हो रहा हो ही जा रहा। ये इस नुकते को समझना, उहदे लई मैं फिर बेनती करदा, सिख का संबंध गुरु नाल संगत के पाठ राही बनता है। असी लड़ीवार, मैं तो अज थोड़ी आप जी नाल सांझ पाउण लगा 2-4 दिन विचकार भी असी लड़ीवार 52 अखरी विचारी, उदों पहला होर बाणी सी, लावां दा पाठ, अलाणियां दा पाठ करते हैं। ये बाणी दी विचार है, ये विचार गुरु दे नाल साझ पाउंदी है सिख दी। पर जिहड़ा सिख गुरु की संगत में, हुण जिन्हें आके कदे 52 अखरी सुनी ही नहीं, उन्होंने की पता भी किन्ने दिनों च पूरी हुई, उन्हें पता की जे कोई आए माफ़ी चाह को सज्जण आए मत्था टेक के चलिया गया, नहीं समझ पानी। तो गुरु का नाता सिख के नाते नाल तां जुड़दा है, उहदे जरिए आए वो एक संगत ते दूजा पाठ। संगत का रासी उदों बनता है, अमृत की दात का रासी उदों बनता है कदों, जदों तू गुरु के बचनों के नाल चले। समझना बाबा रविदास जी का एक शब्द है, वो जरूर समझ लै जाए। उन्होंने ना लिखा गा, तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हमें अवगुण तुम्हें उपकारी। हुण ये ध्यान देना, देखो सतसंग राव का पता है कि सतसंगत कैसी होंदी है, सतसंगत किहो जी होवे। असी गुरु के शरणा च बैठ गए, संगत की, इत्थे बैठ गए, असी बैठ के चले गए कि ये संगत हो गई। माफ़ी चाहांगा, जो गुरु ग्रंथ साहब कहते ने संगत है किमें है, संगत हुंदी किमें है, एवें करो। कहते सतसंगत कैसी जानी है, किहो जी जानी है, जिथे इको नाम वखाणी है, जिथे तेरी सुरत सिर्फ नाम दे नाल जुड़ी हो, नाम दे नाल भी वाहिगुरू वाहिगुरू नाल जुड़ी हो, फिर तो कथा हो रही है, फिर तो वाहिगुरू हो रही है, फिर किमें सुरत जुड़ेगी, सतसंगत है नहीं, एवें नहीं है पाई। इसका मतलब की है, सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे केवल एक वाहिगुरू के नाम दे पर जिहड़ी है संथ्या होवे जां उहदी गल की जाए, सिर्फ नाम का ही जिहड़ा लो है वो चलनी चाहिए है, वो सतसंगत है। तो बाबा रविदास जी कहते भी महाराज सतसंगत ऐसी होंदी है, सतसंगत मिल रही है माधो। सतसंगत कैसी है, कहते साडी हालत। हुण ध्यान दिया जी, उन्होंने अपने आप नूं इस तरीके नाल जिहड़ा पेश किया है, सतसंगत किहदी करनी है। दो चीज़ां ने, गुरु ते कल वाली मैं गल तो जुड़न लग्या, कल वाली गुरदेव का मतलब भी यही सी, कल भी आख्या सी लास्ट विच, वो पतत पावन कर दिंदा पततां नूं, ते पतत कोले आएगा तो पावन होएगा ना, तां ही आएगा ना। पतत हो जिहड़ा गा वो कहंदा महाराज मैनू पावन कर दिओ, वो कहंदे कर सकदे आ, पर सुण ते
पुनीत। कहते सुनना तो कहना तो आवेगा ना, दूर पिया तो नहीं हो सकता। मीह पई जाता, वो कहता जी मीह पैंदा मेरे सिर ते, तो दरख्त के थले खड़ जा, धुप लगती है दरख्त के थले खड़, उस थले तक जाना ही पेगा ना। सतसंगत शब्द नाल तू करे तो किमें करे। महाराज तुम चंदन, तू की है? चंदन है। एक ध्यान दो, रब दे प्यारिਆਂ ने, भगतां ने, गुरु साहिबान ने रब दे नाल डिस्कसन करने लई दुनियावी एग्जाम्पल्स दित्तियां। तू की है? तू चंदन है। रब चंदन है। चंदन च कोई गुण है, वो गुण नाल गुण दी तस्वीर दिती है। तुम चंदन है। एक जगह तो इत्थे तो स्पष्ट रब नूं कह रहे ने बाबा रविदास जी, तुम चंदन हम अरिंड। भाई गुरदास जी कहते सतगुर बावन चंदनो, वास सुवास करे लखीणा। सतगुरु की है? बावन चंदनों, बावन दे विच एक चंदन दी न्याई है। अब पूरी दुनिया की है? जंगल है, तो इस जंगल दे विच सतगुरु की है? फिर चंदन है। इत्थों सुगंधी मिलती है। माफ़ी चाहांगा बाहरों की है? दुर्गंधी मिलती है। यही इसे नूं कहा ना, जो आप कहने भी संगत कही है, संगत का रूप किहो जिहा है। इस सत्संग दे विच साध संगत महाराज कहते बिन भागा सतसंग ना लभे। बिन संगत मैल, मैल कित्थे भरदी है? इत्थे बाहर। संगत तो बिना मैल ही भरदी है बस। तो बाबा रविदास जी कहते ये भी सतसंगत होवे तो कह जी महाराज तू चंदन है। तुम चंदन हम अरिंड। अरिंड का दरख्त। बापरे बापरे विचारे। देखो रब नाल जे गुरु मेरा सुगंधी है, गुरु मेरा चंदन है। मैं कल भी कहा सीगा भी गुरु नूं किन्नियां चीज़ां नाल तस्वीर दी है। गुरु एक चीज़ नहीं, गुरु लो है। गुरु हर चीज़ का बयान किया, जो मर्जी हो। जिवें कहसी भी जे जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम तीर्थ तो हम जाति, जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो जो उमें हो तो मैं आ बन जा। मेरे लिए सब कुछ तू ही है। तू चंदन है जिहदे चों सुगंध आउंदी है। असीं की आ? अरिंड है। इन्हां दी कोई वैल्यू ही नहीं हैगी। बापरे विचारे। तुम चंदन हम अरिंड बापरे, संग तुम्हारे बसा। माफ़ी चाहांगा साडी हालत असीं जाणदे आ। मैं अपनी गल करां, असीं अपनी हालत जाणदे आ ते गुरु कोले बह जाने ने आके। तो गुटका साहब की बाणी भी पढ़ते हुई, बाणी तो सुगंधी है। बाणी तो निरंकार स्वरूप है। बाणी तो परमेश्वर फुल खुशबू रूप है। तो असी साढ़े चो विकारां दी, हौमे दी, ईरखा की बदबू आ रही है, तो बह जाने कोले आकर। महाराज तू चंदन है, असी अरिंड वर्गे हैं, पर संगत मारे बस तेरे कोले रहने हैं। पर यह कृपा होगी भी तेरा संग तुम्हारे है। संग करना, तेरा साथ लेना, तेरे कोले बहना। संग तुम्हारे बासा तेरे कोले रहने आ। फिर नीच रूख ते, नीच रूख रुख, वो रुख जिहड़ा रिंड है नीमो नीच। नीच रूख तो सानू ऊच भए हैं, उच्चे हो गए। ये उच्चा होमे वाला नहीं, ये उच्चा सुरत वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी तेरी सुगंधी लै लै के साड़ी भी सुरत उच्ची हो गई। यही तो गोबिंद करता है। ਇਹਦਾ यही रूप है। वो जिथे लिखिया होया पढ़ते ना, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र, जाकी छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे, नीचे ऊंच करे मेरा। ये ऊंच किवें कर दिंदा भी ऐ थले बैठे ऊपर चक दिंदा है ना ना। जिहदी सुरत नीचे गिरी हुंदी है, थले थले किथे आ साडी अखां तो थले जे एक ही है सारा बेकार ही नहीं। च अखां च बेकार, कन्नां च बेकार, जबान ते बेकार, सब बेकार। सुरत उपर रहिंदी है, इदों थले सुरत रहिंदी है, अखां दे विच रहिंदी है, दृष्टि च रहिंदी है, विकारां च रहिंदी है, गंध च रहिंदी है, सुगंध च रहिंदी है, थले च नहीं रहिंदी है। ये काहदे च? ये नीवी है सुरत।
नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। ये उपर करना, उच्चा करना, आ उच्चा करना है। तो हुण ध्यान दिओ, जे मान लो भी 5वीं मंजिल ते कोई रहिंदा तो उन्होंने तुसीं मिलना है, तो फिर जाना भी तो बोलो 5वीं ते जाना पऊ ना। जिथे रहिंदा तो कित्थे रहिंदा? प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। सब तो उपर है ना। तो जे प्रभु का सिमरन, उसकी याद सब तो उच्ची है, तो फिर सुरत नूं भी उच्चा ही जाना पएगा, ताई जाके सुरत सिमरन नाल मिलेगी। ये उच्चा उच्चाई का नहीं है, हाइट नहीं है, उच्चा किते कुछ होर नहीं है। ये उच्चा कित्थे आ? साडी सुरत उच्ची हो जाती है। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची करनी है। ये इस जगह च कहते हैं भी नीच रूख ते ऊंच पए है तो नीच, पर तेरे कोले रहन करके ना ऊंच पए, उच्चे हो गए। फिर गंध सुगंध निवासा, साढ़े जो बदबू आउंदी सी ते तेरी कृपा हो गई, हुण सुगंधी आने लग गई। एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण मैं बार बार उही देना ना, क्योंकि सौखी जी समझ आ जाती है। तो जिहड़ा ठगियां मारदा सी, दिने सज्जन ठग, सपोज करो भी अज दे दिन बाबा नानक मिलता है, अज सज्जन ठग, रात बाबा नानक रहा, तो सवेर नूं सज्जन संत। क्यों? आही तो उन्हें ऊच नीच ते ऊच करना है। हुण उहदे च एक दिन पहला गंदी आउंदी सी, गंध दुर्गंध आ रही सी, अज उहदे च सुगंधी आउण लग गई। जिहड़ा लोकां नूं ठगियां मारदा सी, वो खुद ही ठगिया गया। उन बाबे नानक दे बोलां ने ठग लिया। वो है जिथे कहते नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा माधो। हे माधो जी, सत संगत शरण तुम्हारी, सत दी संगत तेरी संगत ते शरण तेरी विच आए हाँ। ते किया हम औगण, असी किया औगण। देखो नाम जपण वाले गुरु साहब की असीं गल करते, भगती दी वालियां दी गल करते, वो बार बार रब दे सामने अपने आप नूं कहंदे नहीं भी असीं खुशबू वाले, असीं बंदे चंगे, असीं बहुत चंगे, साडे कर्म चंगे, ये भी नहीं कहंदे भी साडे गुण बहुत ने ना। जदों कहंदे ने हम औगण, हम अवगुण भरे, जेता समुंद सागर नीर भरे आ, ये सब उही गल बयान करते हैं भी साढ़े कोल गुण है ही कोई नहीं। यही स्टेज आ जिथों मन नीवा हो गया, मत उच्ची होती है। मन नीवा होगा तां जी नीवियां गल्लां करूं, कहण नाल थोड़ी होएगा। जे अवगुणां दे भरे आंगे तो जांदिआं नूं कोई कहदे भी किन्ने क अवगुण ने तेरे, ते उहदे नाल लड़ पवे, तूं किवें कहता मैनूं। भाव जी कहा यही मन नीमा है। कहते हम अवगुण तुम उपकारी, तू तो उपकारी है बड़ा, साड़ी हालत यह जी है। खुशबू तेरे तो खुशबू मिलती है, साढ़े तो गंदी नफरत प्रेम है ही नहीं कोई। ईर्खा दे भरे, साड़े दे भरे हैं, जलसी दे भरे हुए हैं, साढ़े विच नहीं है। कहते तुम मखतूल सुपेद सपैयल, हम बपरे जस कीरा। दो का कंपैरिजन करते हैं। कहते तुम मखतूल, मखतूल कहते ने रेशम के कीड़े ने, रेशम के कीड़े। देखो कितनी सोहनी बयान है तुहाडे ना। हुण घरां दे विच गुड नाइट तो मेरे ख्याल सब दे चलदी है, चलदी है कि नहीं? मच्छर छोटा जिहा कोई बचाउंदा उहनूं, ला दो सब कड्डो बाहर इहनूं। जे किते मूँह आ जे ऐ कर करके सारे असीं मार दिंदे। जे किते होर कोई कीड़ा आ बड़े, गर्मियां च निकलते हैं, तो फिर तो असीं झाड़ू होर कुछ जिहड़ा कुछ हत्थ च ठा मारदे, मारो कित्थों कीड़ा बड़ा लड़ जाएगा, बड़ा खतरनाक ऐ है ना। तुसीं देखो भी कीड़े कैसे मर्जी कीड़ा निकला, सप वैसे तो सप नूं भी कीड़ा ही कही कहंदे ने पंजाबी च,
तो जिथे निकलिया तो मार देना भी कीड़ा ये खतरनाक है। कोई कीड़िया नूं बचाउंदा नहीं, सब सगों स्प्रेयां कर करके कीड़े मारते हैं। फसलों ते कीड़ा पै गया, कोई गुलाबी रंग की सुंडी, कदे पीले रंग की सुंडी, कदे नीले रंग, यही है ना, कीड़ा ही है वो। कोई कीड़ा जिहड़ा होवे उहनूं असीं मारदे हां, पर कोई कीड़े नूं बचाउंदा नहीं। एक कीड़ा जिहनूं लोग बचाउंदे ने वो की आ, रेशम दा कीड़ा। उहनूं पालिया जा रहा, उहनूं बचाया जा रहा, उहदी खेती हो रही है। क्यों? उहदे कोले गुण है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਸਪੀਅਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਸਫੇਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੋਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੈ ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਖਤੂਲ ਸਫੇਦ, ਸਫੇਦ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਫੇਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਫੇਦ। सफ़ेद बनया सफ़ेद, सपीयल, सपीयल पीले रंग का। हम बपरे जस कीरा, वाहिगुरू जी असी की हाँ? असी बेचारे दूजे कीड़े हाँ जिन्होंने देख के ठा मार दी। कीड़े नहीं पैंदे, कीड़े किन्ने तरह के ने, अमरूद च कीड़े पै जाते हैं, सब्जियां च कीड़े पै जाते हैं, ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਆ, ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਬਿਸਟਾ ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰੇਸ਼ਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਫੇਦ ਸਪਈਅਲ, ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਤੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲ ਰਹੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ? ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮਿਲੋ, ਐਵੇਂ ਮਾਧੋ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ, ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ, ਜੈਸੇ जैसे मदप मुखीरा, जैसे मदप मुखीरा। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਵੇਂ ਪਤਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧ, ਐਵੇਂ ਮਿਲੋ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਦਪ, ਮਦਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਖਿਆਲ ਲਿਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮਖਿਆਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਮਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਮਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਪ ਦੇ ਮਖੀਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀੜੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਖੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਮੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੰਘਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੈਠਣ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਖੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ ਮੱਖੀ ਚਲੀ। ਬਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਪ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੈਅ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਮਿੱਠੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਮਾਖੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਮਾਖੀ, ਜੈ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਿ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨੇ ਦੁਰਗੰਧ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਬ ਮਖੀਰਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਤੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ?
भी फुੱਲ चों शहद निकल रहा हो, नहीं देखा ना। साडियां एड्डी एड्डी मोटिया मोटिया अखां ने, माफ़ी चाहांगा, सानू नहीं दिखदा, तो ये बिच बैठ के जाके पी के इनू किवें दिखदा। अदृष्ट शहद जिहड़ा दिखाई नहीं दिंदा सानू, वो शहद की मक्खी पींदी है, उन्होंने पता भी ये पीना है, तो फिर की करती है, पींदी। आपां कहने मैं बार बार अनाउंस कर रहा भी पींदी है, पींदी नहीं हैगी वो शहद। वो की करती है, जे जाके फुੱਲ की सुगंधी जिहड़ी उहदे विच है उहनूं इकट्ठा करती है, वो लिया के फिर अपने छत्ते ते बहिंदी है। जिहड़ा शहद इकट्ठा करदे, जिहड़ा असीं कहंदे शहद चो लिया, ये इकट्ठा करती है वो, तो वो शहद सारा इकट्ठा करती है। तो फिर तुसी देखो वो जदों आप बहिंदी आके ना, इन्हां दी अपनी एक बोली है, हर जीव की आपो अपनी बोली है। वो चाहे खंभा का इशारा होवे, भावें उहदी जिहड़ी गूंज है उहदा इशारा होवे, फिर नाल दियां नूं दसदी भी इन्नी दूरी ते जाके फुੱਲ लगे हुए ने। नाल दियां नूं तुसी की करना, तुसी रंग नहीं देखने, फुੱਲ दे साइज नहीं देखने, उन्हां दे तने नहीं देखने, उन्हां दे पत्ते नहीं वेखने, उन्हां दी जमीन नहीं वेखनी कित्थे लगे हुए ने। तुहाडा संबंध काहदे नाल? बोलो, सुगंधी नाल है। तो गुरु दे कोले जदों बंदा आवे तो इहदा संबंध किहदे नाल होना चाहिए? केवल गुरु की संगत शब्द नाल होना चाहिए, गुरु की सुगंधी नाल होना चाहिए। साडा माफ़ी चाहांगा बहुते तो यही हुंदा भी फलाणे दा समागम है, असीं तां नहीं जांदे हैगे। साडा संबंध तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल होना चाहिए। धड़िया बंदे अज जिहड़े तुसीं देख रहे हो यही हैगा। असीं भौरे नहीं बन सके, ਉਹਦੇ नाम के भौरे नहीं बन सके, उस भौरे ਜਿਹੜੇ सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल जुड़े होने चाहिए। साडा की मतलब किहड़ा फुੱਲ आ, किवें आ, कित्थे लग्या, क्यों लग्या, ना वो मक्खी कहती तू जा सिर्फ जाके सुगंधी लैके मुड़ के आई, तेरा दूजा काम ही कोई नहीं है। ये ਉਹਦਾ सुभाਅ है। तो तुसीं होर देखिया ना भी होर जिहड़ा मर्जी वग जाए कोले ते मक्खी, वो मक्खी डंग मारदी है कि नहीं? तो जदों शहद छत्ते ते बैठिया हुंदियां ने, एक दूजे के उपर बहिंदियां ने, किसी नूं डंग नहीं मारदी, बहिंदियां इकट्ठियां होके जुड़ के बैठिया हुंदियां ने। एवें जुड़ के बहना सत संगत इहनूं कहिंदे ने। जे संगत गुरु की करनी आ, ऐ करो जिवें मक्खी शहद की करदी है। जैसे मधुप मुखीरा, जैसे मधुप मुखीरा, जैसे सतसंगत मिल रही है माधो, सतसंगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मुखीरा, जैसे मधुप मुखीरा, आ जिहड़ी शहद की मक्खी हुंदी है ना, इहनूं तुसीं उड़दी बाहला नहीं देखोगे। जे बैठे भी देख तुहाडे घर अगे तो फुੱਲ लगे होण, जे उत्थे आ भी जाए ना, इन्हें आपदा गेड़ा देना, उत्थे जिथे इहनूं मिठा देखिया उत्थे लैके चली जाना। अच्छा दूजियां तुसीं चाह पी के थोड़ी जी डोल दिओ तो सारा डब्बन कढ़न लग जाओ, सारे नहीं कढ़ सकते, इक्को ही मक्खी आ जाए अंदर, ये बैठ नहीं सकती, ये टिक नहीं सकती। ये वो मन है जिहड़ा मक्खी ते जिहड़े मन की अवस्था है, जिहड़े दुनिया के जिन्ने रस कस ने इन्हां ते जिहड़ा फिरदा ना, ये वो मक्खी दी न्याई है। गुरु पातशाह कहते, बाबा रविदास साहब कहते, जे तू सतसंग गुरु ग्रंथ साहिब की करनी है, शब्द की करनी है, निरंकार की करनी है, एवें करी जिवें शहद की मक्खी करती है। वो शहद लैके आपदा तुर जाती है तो ऐन शांत होकर टिक के बैठी रहती है। वो टिके हुए मन की अवस्था है मधुप मुखीरा, ਉਹਦੀ एग्जाम्पल दी है, यही नहीं हैगी। फिर कहते साड़ी हालत यह है भी जाति ओछा पाथी ओछा, जो ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास चमारा। असलीयत साडे मन की अवस्था है। ये मन किहो जी मक्खियां वाले, दूजी मक्खी वाले, घरेलू मक्खी वाले काम करदा, इत्थे बह गया, इत्थे बह गया, आ दुर्गंध ओ दुर्गंध, इन्हें टिक के बहनी नहीं। तो जिन्हां दा टिक, माफ़ी चाहांगा, फिर वो यही कहते हैं जी मन नहीं टिकदा, किहदे नहीं आई, जिवें घरेलू मक्खी नहीं टिकदी।
सत संग दे विच बैठण दा तरीका बयान किया है, विधि बयान की है बाबा रविदास जी ने। फिर कहते तेरी गुरु नाल क्यों नहीं साझ बनेगी, फिर वो गुरुदेव पिता तेरा क्यों नहीं पिता बनेगा, क्यों नहीं माता बनेगा, क्यों नहीं तेरे नाल रिश्ता बनेगा। यही रिश्ता बिल्ट करने का तरीका मैं बेनती रात कर रहा सी। गुरु नाल रिश्तेदारी ऐ बननी है, वो काहदे नाल बननी है भी पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पाठ दर्शन दीदार है, ये पाठ है, बाणी का जाप है। इत्थे ये कीर्तन कथा नहीं लिखा कि कीर्तन का दर्शन दीदार या कथा का दर्शन, ना पाठ दीदार का। क्योंकि कीर्तन करने वास्ते भी पाठ शुद्ध चाहिए है, कथा करने वास्ते भी पाठ शुद्ध चाहिए है। तो पाठ का दीदार, पाठ दीदार का मतलब है भी जे तैं गुरु ग्रंथ साहब के दीदार करने ने तो वह पाठ कर, तो फिर तेरी साझ बनेगी शब्द नाल। जे शब्द नाल साझ बनानी है तो एवें बना जिमें मधुप मखीरा संगत करता है। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुपक मखीरा। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम। इस करके मैं बेनती की भी सत संगत एवें है, गुरु के शब्द की एवें संगत करो। साडा मतलब सिर्फ रस नाल है, सुगंधी नाल है, चंदन की खुशबू नाल है, होर किसी चीज़ नाल मतलब ना होवे तो फिर गुरु की संगत में जुड़ के लाहा प्राप्त हो सकता। सब का धन्यवाद, कोटान कोट शुक्र। श्री गुरु।